तो 12वें दिन आपका स्वागत है। 12th डे हम चालू कर रहे हैं 10वें क्वेश्चन से। और 10वां क्वेश्चन है एन ऑडिटर ऑफ ग्रूम लिमिटेड यू हैव सेंट पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू 30 क्रेडिटर्स। आपने 30 क्रेडिटर्स को पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजी। ऑल ऑफ द क्रेडिटर इन इनफॉर्मल सेक्टर आर स्मॉल कंसर्न, और वो सब छोटी छोटी कंसर्न है। You choose to send positive confirmation request to all the above parties at their business address stated on respective bills after discussing the matter with CFO of the company. CFO is cooperative and does not raise any hassle in the matter. Response to confirmation requests are received within a week's time. Your article clerk inform you that out of 30 creditor, GST registration of 25 concerns have been cancelled during the year 23-24 itself by collating information from GST portal. He further informs you that there are no fresh registration pertaining to PAN numbers of these parties. How would you proceed to deal with the situation as an auditor of? बढ़िया क्वेश्चन। क्या लिखें? एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मांगी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आई, लेकिन एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आने के बाद ऑडिटर उस एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को क्या अदर ऑडिट एविडेंस की लाइट में टेस्ट करेगा या सीधा विश्वास कर लेगा? और अगर अदर ऑडिट एविडेंस या अदर इंफॉर्मेशन की लाइट में ऑडिटर को लगता है कि जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन उसको आई है वो अनरिलायबल है, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और बढ़ जाएगा। और अगर बढ़ जाता है तो फिर उसे अपनी ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को और बढ़ाना पड़ता है। इज दैट क्लियर? इतना सा आंसर वहां पर लिखना था, लेकिन कौन सी लाइन लिखनी थी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके TYU में भी कवर नहीं है। अगर मैं SA 505 पर जाऊं तो कौन सी लाइन मुझे ये देखनी है कि जो मुझे लिखनी है? SA 500 ये बताता है कि even when all audit evidence is obtained from sources external to the entity, circumstances may exist that affects its reliability. All responses carry some risk of interpretation, alteration of fraud. Such risk exists regardless of whether the response is obtained in paper form or by electronic form, other means. Factor that may include doubt about reliability of the response include that it was received by the auditor indirectly or appeared not to come from originally intended confirming party. Response received electronically, for example, and all these risks तो हैं ही अपनी जगह. If confirming party uses third party to coordinate and all that,
इफ ऑडिटर रिक्वायर्ड बाय एस ए 500 टू डिटरमाइन मॉडिफाई, तो सब ठीक है. जस्ट अ मिनट. When auditor concludes that a response is unreliable, auditor may need to revise the assessment of risk of material misstatement at assertion level and modify the planned audit procedure accordingly. Is that clear? कौन कौन सी दो बातें एस ए 505 में और एस ए 500 दोनों से रिलेटेड देनी थी? वेरी सिंपल. पहले आपको लिखना था अकॉर्डिंग टू एस ए 500, even audit evidence is received from external sources who carries certain amount of risk of material mistake. Circumstances may raise a question about reliability of external. आप मुझे बताओ, ये पॉइंट आपने किस चार्ट में रटा? ये पॉइंट आपने किस फ्लो चार्ट में रखा? ये पॉइंट आपने किस शॉर्ट ट्रिक में रखा? रटा ही नहीं सकता कोई ये पॉइंट आप, क्योंकि ये पॉइंट स्टैंडर्ड ऑन रनिंग 505 का है ही नहीं. ये पॉइंट तो ऐसे 500 का है. अब आप बताओ, हम वहां क्या लिख के आएंगे? नहीं नहीं, ये तो मिस स्टेटमेंट है, तो अनरिलायबल है, और ये तो आपको ऑडिट प्रोसीजर तो एक्सटेंड करनी पड़ेगी. कोई लिखाएगा कि रिपोर्ट मॉडिफाई करनी पड़ेगी. एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे, आके बोलेंगे तूने भी यही लिखा, मैंने भी यही लिखा, अपन दोनों ने यही लिखा, और साला नंबर ही नहीं दे रहा. कैसे देगा? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए. अब आप लिखो अकॉर्डिंग फर्दर, इसके बाद लिखते हैं फर्दर, अकॉर्डिंग टू एस ए 505, इफ external confirmation proves to be unreliable, it is a situation of increased risk of material misstatement at assertion level. ये assertion level पे ROMMS है. Hence, auditor should analyze impact of such increased ROMMS over its planned substantive procedures to reduce such risk to an acceptably low level. इसके बाद आप इसको कोरिलेट कर दो, और इसके बाद आप इसको कंक्लूड कर दो.
उसने अपने से कंक्लूजन में पूछा क्या है? डील विद द सिचुएशन, कंक्लूड में लिख देना है ऑडिटर विल अमेंड इट्स प्लान, प्रोग्राम, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ कोरिलेट तो आप कर ही दोगे क्वेश्चंस। ओए होए मेरे बच्चों, कुछ समझ में आया? आगे बढ़ूं? हम्म। बढ़िया। आप लोगों के फीडबैक जब आते हैं ना, तो दैट गिव्स अ कॉन्फिडेंस कि यार हाँ, आज भी दुनिया में लोग समझने के लिए तैयार है। मतलब मूर्खता के पीछे नहीं दौड़ रहे। मूर्खों सही के यू आर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, bloody signing the report of Hindustan Unilever Limited and other entities. How can I expect from a CA final student to mug up the uh, acronyms and just rectification of the lines which are given there and then flow chart and a short trick? भाई साहब, अगर मैं आपको एमबीबीएस करवा रहा हूँ और आपको एक सर्जन बना रहा हूँ ना, तो सर्जरी की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती डियर। You are specializing something. It's a specialization. इसके अंदर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। ये स्पेशलाइजेशन है, इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक होगी? इसकी शॉर्ट ट्रिक बना दी तो हो गया काम। कोर है अपना, कोर सब्जेक्ट जिसके लिए अपन पैदा हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। नाउ, नेवर परमिट लिमिटेड refuse to allow to get direct confirmation of the outstanding balances of trade receivable. You want to ensure on the grounds of materiality that at least outstanding above a threshold limit needs to be confirmed and reconciliation is to be carried out before finalizing the audit. If the company does not relent, how will you respond? बताओ। ये तो प्योरली अपना मेरे को रटवाया गया है, ये तो इसमें तो अपना कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू एस ए 505, वेन एवर देर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन, if management refuses, then auditor should evaluate the matter and then he should communicate to those charged with governance and then perform alternative audit procedures. ये तीन चीजें तो अपने को रटी हुई है। एकदम बेहतरीन, कोई दिक्कत ही नहीं है। सारा मतलब है तो लिमिटेशन ऑन स्कोप है, और ये तो इवेल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट दे देंगे रिलेटिंग। नो 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 नो। ठीक है बेटा, आपने आपके चार्ट में रटी हुई तीन बातें लिख दी। पहले लिख दिया ऐसे 505 का नाम। उसके बाद आपने तीन रटी हुई चीजें अपनी लिख दी। सबसे पहले तो हम मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे कि भाई आप क्यों रीजन दे रहे हो। फिर हम उसके इवेल्युएट करेंगे रीजन को, और इवेल्युएट करेंगे इम्प्लीकेशन हमारी रिपोर्ट पर उसका क्या जा रहा है। और तीसरा हम परफॉर्म करेंगे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। ये तीन काम हम करते हैं। ये तो अपन लिख देंगे, यूं लिख देंगे ना। अब हमको इतना लिखने के चार में से मिलेंगे 1.5 नंबर। अब मुझे बाकी का 1.5 नंबर कहाँ से देगा? देखो, चार में से तीन ही आएंगे। मैं भी लिख दूंगा तो चार में से चार नहीं मिलेंगे, ये आपको मैं इंटरमीडिएट से बता, मिलेंगे तीन ही। लेकिन बाकी 1.5 कहाँ से आएंगे? दैट इज वेरी, बाकी 1.5 में ये लिखना पड़ेगा कि अगर इफ द ग्राउंड इज अनरीजनेबल, इट विल बी अ restriction on scope of
ऑडिट, ये ऑडिट के स्कोप पर रिस्ट्रिक्शन है, एंड इफ ऑडिटर इज unable to apply alternative audit procedure, he has to modify his audit opinion. उसे अपने ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या बोला है, समझ में आया? 1.5 नंबर का कटता है, क्वेश्चन पढ़ा, रटा हुआ लिखा, कंक्लूड करा और बाहर निकल गए ना। पहले क्वेश्चन, आखिरी में रिस्पॉन्स बोला, रिस्पॉन्स किसका रिस्पॉन्स? आपने मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स तो लिख दिया, ऑडिटर का रिस्पॉन्स तो बोलो। मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स पे ऑडिटर क्या करेगा वो तो ठीक है, फिर ऑडिटर का फाइनल रिस्पॉन्स वो तो देना पड़ेगा ना, नंबर कट जाएंगे। चलें आगे। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ स्टार लिमिटेड, company engaged in production of paper. Auditor receives certain confirmation for the balances of trade payable outstanding in the balance sheet through external confirmation by negative confirmation request. In the list of trade payable, there are a number of small balances, except one which is old outstanding of rupees 20 lakhs, for which no confirmation was received. Comment with respect to standard on auditing to the confirmation process and how to deal with non-receipt of a confirmation. बताएं, क्या करें? बताओ बताओ, सोचो दो मिनट। क्या लिखोगे? लिस्ट दो मेरे को यहाँ पे, गिव मी द लिस्ट। तो आप जितना मेरे को दे रहे हो ना जवाब बेटा, ज्योति, शरद, हम्म, आपने क्या बोला? सब वही करेंगे, अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, है ना? तो मालूम है आपने क्या बोला है? आपने ये जवाब दिया है, चाहे सेजल हो, चाहे शरद हो, चाहे ज्योति हो, तीनों एक ही चीज पर टिके हुए हैं और कोई ये बोल ही नहीं रहा। मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवाते वक्त कम से कम 10 बार बोला हूं, पूरे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आखिरी की 2 होती,
क्या पूछा उसने? Comment with respect to standard on auditing relating to confirmation process. स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से कंफर्मेशन प्रोसेस पर अपना कमेंट दो. एंड देन हाउ वुड यू डील द नॉन रिसीट? मतलब बाम्बू बहुत जोरदार बात है. ये क्या होता है? पॉपू इंडिजीनियस हो? ये कौन सी शॉर्ट ट्रिक है? अरे भगवान. चलो जरा समझते हैं. भाई साहब, कंफर्मेशन प्रोसेस में आपको बोलना पड़ेगा कि SF 505 ने हमको कहा है कि नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आप ले सकते हो इन केस आइटम इमटेरियल हो और ROMMS लो हो. बताया था नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कब लेना? जब आइटम इमटेरियल हो, ROMMS हो, और जो पॉपुलेशन वो होमोजीनियस. तीन बातें बोली थी. पहले बोली, फिर उसके बाद बोलो कि अगर नॉन रिसिप्ट होता है. नॉन रिसिप्ट इज नॉट. नॉन रिसिप्ट इज नॉट. नॉन रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट नोन एज नो रिस्पॉन्स. अच्छा सेजल, तू ये जो बोल रही है बेटा, फेल्यूर टू रिसीव रिस्पॉन्स डज नॉट मीन कंफर्मेशन बैलेंस, ये किसके लिए बोल रही है? 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा. मालूम नहीं तुमने इस पॉइंट को कितना देखा है और कितना नहीं देखा. 1 मिनट के लिए मैं डिस्टर्ब करूंगा क्योंकि मेरे को एकदम ध्यान आ गया कि आपको एक पॉइंट इम्फेसाइज करके बताना है, और वो है नो रिस्पॉन्स की डेफिनेशन. आज से एक फंडामेंटल क्लियर रखेंगे आप सब लोग. नॉन रिस्पॉन्स की डेफिनेशन देखो. A failure of the confirming party to respond or fully respond to a, अंडरलाइन कर लेना अब आज के बाद जिंदगी में, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. यानी निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के केस में कोई नॉन रिस्पॉन्स होता ही नहीं. जिंदगी भर के लिए एक कंसेप्ट दिमाग में डाल लेना. This non-response definition is just applicable over where positive confirmation request. And second, अगर रिटर्न आ गई, अगर रिटर्न आ गई तो रिटर्न तो दोनों के केस में नॉन रिस्पॉन्स है. आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न एंड डिलीवर, पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, दोनों का लेटर अगर वापस आ गया तो दैट इज नॉन रिस्पॉन्स. बंधु बंधु समझो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अनडिलीवर्ड वापस आ गई तो उसको नो रिस्पॉन्स कहेंगे. लेकिन पॉजिटिव हो और नहीं आई तो नॉन रिस्पॉन्स कहलाएगी. पॉजिटिव हो और आधी आई
नॉन रिस्पॉन्स कहलाएगी। पॉजिटिव हो और अनक्लियर आई, नॉन रिस्पॉन्स कहलाएगी। निगेटिव हो और नहीं आई, नॉन रिस्पॉन्स कहलाएगी। नॉन रिस्पॉन्स में आरओएमएस बढ़ती है। गॉट इट। हाँ, लेकिन अगर आपने यहां गलती से लिख दिया कि ये 20 लाख रुपए की जो नॉन रिस्पॉन्स आई है, इसके कारण ऑडिटर की आरओएमएस बढ़ जाती है, और ऑडिटर को जो है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ती है, ऑडिटर को अल्टरनेट ऑडिट, पूरे नंबर कट जाएंगे। गलती से भी मत लिख देना कि नॉन रिस्पॉन्स तो आएगा ही नहीं, तूने भेजी निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में नॉन रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। वहां तो नॉन रिस्पॉन्स को कंफर्मेशन ही माना जाता है। लेकिन ये 20 लाख रुपए के बारे में नॉन रिस्पॉन्स आया है, और तुमको लग रहा है कि आइटम क्या है, मटेरियल है, तो नॉन रिस्पॉन्स है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेरे को चूंकि और मटेरियल लग रहा है, तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा ले भाई। एडिशनल, अल्टरनेटिव मत लिखना। अरे कुछ समझ में आया मेरे बच्चों तुमको? कमीज, कमीजदारी से आंसर देना। पहली बात, निगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में कोई नॉन रिस्पॉन्स होता ही नहीं। वो सिर्फ नॉन रिस्पॉन्स तब होता है जब वो रिटर्न एंड डिलीवर्ड। अगर 20 लाख के लिए तुम्हारे पास रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि 20 लाख कंफर्म हो गए हैं। तुमको अपने दिल में लग रहा है कि आइटम मटेरियल है, तो पहली बात तो उसके लिए निगेटिव लेनी नहीं थी। अब अगर ले ली है तो कोई बात नहीं, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा। अरे कुछ भेजे में गया, क्या नहीं लिखना है ये भी भेजे में गया। यहाँ नॉन रिस्पॉन्स लिख दिया और आरओएमएमएस बढ़ गई है और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा दूंगा, एक नंबर भी नहीं मिलेगा। सजेस्टेड आने के बाद भी आदमी नहीं समझ पाता है कि उसने क्या गलत लिखा है, क्योंकि उसके फंडे ही क्लियर नहीं है। वो बोले मैंने नॉन रिस्पॉन्स लिखा था, इसने नॉन रिसीट लिखा था। भाई साले, नॉन रिस्पॉन्स और नॉन रिसीट में बहुत अंतर है। नॉन रिस्पॉन्स वर्ड यूज होता है पॉजिटिव के लिए, नॉन रिसीट वर्ड यूज होता है निगेटिव के लिए। इतनी तमीज ही नहीं है, तो क्या आंसर लिखेगा तू जाके वहां पे भाई? आगे बढ़े। अभी मेरे बच्चे यहाँ जितने बैठे हैं सब क्लियर हो गए। बाकी ऐसी तैसी कराने दो, जिनको शॉर्ट ट्रिक याद करनी है, जिनको कलरफुल चार्ट याद करने हैं, जिनको निमोनिक्स याद करने हैं, जिनको बॉलीवुड याद करना है, उनको उनकी 12 बजवाने दो। अपन अपना काम करो, फंडामेंटली स्ट्रांग। आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट। योर फर्म has been appointed as statutory auditor of AGM Private Limited for the financial year 22-23. While verifying company's trade receivable as on 31st March 23, accountant of AGM Limited has requested you not to send balance confirmation to a particular group of trade receivable since the said balances are under dispute and the matter is pending in the court. As a statutory auditor, how would you deal in this situation? अरे रटा हुआ है, शर्म नहीं है, रटा हुआ है। हम यहाँ पर फिर से वही 3 पॉइंट लिखेंगे, रटे हुए। इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से, इवेल्युएट करेंगे इम्प्लीकेशंस को, परफॉर्म करेंगे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। बढ़िया है।
हम्म। ठीक है, ये 3 पॉइंट तो आपके रटे हुए वो लिख दो। और क्या लिखो? अगर ये 3 चीजें लिख दी तो ये तो प्रोविजन है। अब दिए गए क्वेश्चन में मैनेजमेंट ने हमसे कहा है कि लीगल डिस्प्यूट के कारण आप इनको मत लो क्योंकि ये कोर्ट में पेंडिंग। इसकी रीजनेबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्या हम लीगल काउंसल इनका जो है उससे एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मंगाएंगे? क्या हम उससे ये डिस्कस नहीं कर सकते कि हमारे कंफर्मेशन मांगने से ऐसा क्या भूचाल आ जाएगा? और चल कोई बात नहीं, हम कंफर्मेशन नहीं मंगाते तो एक काम कर, तू ही हमको कंफर्म कर दे कि ये बिल्कुल रीजनेबल ग्राउंड है तो हम नहीं लेते। फिर हम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा लेंगे। अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर में हम लेजर स्क्रूटनी कर लेंगे, हम इनवॉइसेस देख लेंगे, हम अदर डॉक्यूमेंट देख लेंगे। We'll do that। लेकिन बेटा, ये पार्ट लिख के नहीं आएंगे तो 4 नंबर के क्वेश्चन में पहले ही अपने को 3 मिलने थे, मतलब मेल ही हुआ तो भी 3 मिलेंगे। 3 में से 1.5 तुमको अटक मिल गए, 1.5 तुम्हारे आए ही नहीं। कैसे कैसे लिखते हो आप जाके वहां? 1.5 लिख रहे हो, 1.5 लिख ही नहीं रहे हो। तो क्या आपने रटा हुआ 1.5 है? अप्लाई तो करते नहीं हो जो रटा हुआ है। उस रटे हुए को अप्लाई करके आओ ना यार। वो एप्लीकेशन पार्ट तो छूट ही जाता है। अरे एप्लीकेशन पार्ट तो छूट ही जाता है ना बाबू। ये देखो छूट गया। ये लिखा है अपन रटा रटा है। अरे भूल गए। अच्छा, इतना लिखने के बाद हेंस 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 हेंस, इसके बाद अपन क्या कर देते हैं? हेंस। अरे हेंस क्या, यहाँ आएगा, उसके बाद खत्म होगा हेंस। आज पूरा लिखा हुआ चाहिए मेरे को। आज का होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना। कल सुबह नहीं तो क्लास में से बाहर निकाल दूंगा मैं। पूरे 28 क्वेश्चन चाहिए मेरे को। सर ऐसे 501 भी लिख दें क्या? लिख दे लिटिगेशन क्लेम, अगर है तो। क्या टेंशन लेते हो? चलिए। मेसर्स एबीसी एंड कंपनी एलएलपी are appointed as auditor of Sharp Company Limited for the year ended on 31st March 23. As a part of audit process, they want to use confirmation procedure as audit evidence during the course of audit. In view of the fact that positive confirmations are not responded favorably, the firm also intend to use negative external confirmation request. What are the factors to be considered for the same? Direct question. अरे सर, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन। निगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी हो तो क्या क्या होना चाहिए? भैया पहले तो नाम लिखूंगा SF505 का। उसके बाद बताऊंगा नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है। उसके बाद बताऊंगा कि नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने की फेवरेबल कंडीशन क्या है। पहली फेवरेबल कंडीशन है कि भाई साहब लो ROMMS हो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो हो वो लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो। साथ में ये अगर लिखना भूल गए कि ऑडिटर ने उसके लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिए हैं तो आपका नंबर कट है। सर आप ये क्या बोले?
ओ मेरे रट्टू तो खाली इतना लिख के मत आ जाना लो आर ओ एम एस। साथ में लिखना पड़ेगा एंड ऑडिटर हैज ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय अप्लाइंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल। कहाँ? कहाँ? अपन ये भूल रहे हैं भाई साहब लिखते टाइम। ध्यान रखिए भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये कट गया नंबर। और सर मेरा रटा हुआ है। स्मॉल होमोजीनियस पॉपुलेशन। और लार्ज कौन लिखेगा? हाँ लार्ज। अच्छा। हाँ 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 अब भूल जाते हैं अपन। लार्ज लिखना। 100। लो एक्सेप्शन रेट क्या होता है ये? लो एक्सेप्शन रेट क्या होता है? एक आध एग्जाम्पल दो ना यार बैठे हो आप लोग इतने सारे पढ़ रहे हो मेरे से बताओ ना इसका एग्जांपल दो ना लो एक्सेप्शन रेट का क्या है? कि खाली रेट टोटल लिया। लो एक्सेप्शन रेट। पहली बात तो एक्सेप्शन क्या होता है? A response that indicate a difference between information requested to be confirmed or confirmed in entity's record and information provided by the confirming party। दोनों में डिफरेंस आ जाएगा इसके चांसेस। सर दोनों में डिफरेंस आ जाएगा इसके चांसेस ही का। क्यों? क्योंकि जो कंफर्मिंग पार्टी है वो गलत जानकारी देगी ही नहीं। उससे कोई गलत जानकारी आएगी नहीं। क्यों? अरे वो बैंक। मैं उसके रिकॉर्ड मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वो इंश्योरेंस कंपनी है। वो रिलेटेड पार्टी थोड़ी। क्या इसका मतलब ये है? लो एक्सेप्शन रेट जहां पर गलत इंफॉर्मेशन आने के चांसेस कम। मतलब इनसे तो डिफरेंस हो ही नहीं सकता। कोई आदमी बैंक स्टेटमेंट की और बैंक बुक में डिफरेंस कैसे रख सकता है? तो रख सकता है। मतलब फ्रॉड करने के पहले 4 बार सोचेगा कि यार ये ऑडिटर आके बैंक स्टेटमेंट तो मंगवाएगा और बैंक स्टेटमेंट से टैली कर लेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है तो अब ये तो इंश्योरेंस का है बैंक का है। दे ऑल आर लो एक्सेप्शन रेट्स। तो लो एक्सेप्शन रेट है तो वहां पे आप नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज कर सकते हो। चौथा, अगर आप नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि डिसरिगार्ड होने के चांसेस कितने हैं।
मतलब उसको सीरियसली ली ना लेकर कचरे के डब्बे में तो नहीं डाल देंगे। सरकारी डिपार्टमेंट में भेज दो, नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। पॉजिटिव को ढंग से रिस्पॉन्स नहीं देते वो, नेगेटिव को क्या देंगे? कचरे के डब्बे में फेंक देंगे उठा के। पॉजिटिव ही भेजना चाहिए, जहां पर डिसरिगार्ड होने के चांसेस ज्यादा हो। इसके बाद, ये तो अपन लिख के आ गए। इसके बाद जो अपन भूल रहे हैं वो ये कि असर्शन कौन सा है जिसके लिए आप नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मांग रहे हो। अगर स्पेशल आरओएमएमएस उसमें कोई है तो ध्यान रखना कि अपन एक कि अपन नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ना मांगे। बस ये दो पॉइंट और लिख दो, काम खत्म। गॉट इट? गुड। चल, CAM Hussain is appointed auditor of a firm for year 23-24 on 31st July 23. The accounts of the firm were unaudited in 22-23. The firm had material inventories reflected in financial statement as on 31st March 23. He is performing audit procedure including attending physical inventory count as on 31st March 24. However, there is a lingering doubt in his mind regarding opening inventories reflected in the financial statement. Does there exist any responsibility on his part in such a situation? लो भैया, आ गए हम ऐसे 510। क्या लिखूं यहाँ पे, सोच के बताओ जरा जल्दी से। तो सोचो आराम से, जल्दी नहीं। बताओ बताओ बताओ। बस मेरा वही कहना कि आखिरी के दो पॉइंट क्या है, उसके दिमाग में, खोपड़ी में एक डाउट टक गया है कि यार ओपनिंग इन्वेंटरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्टेड है, कहीं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है? क्या ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पार्ट पर अंडर दिस सिचुएशन? It means they are talking about responsibility of auditor in case of unaudited opening balances.
हम्म पहले तो ऐसे 510 का नाम लिख देंगे, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। इसके बाद उसका पूरा ऑब्जेक्टिव मत लिख देना, उसमें ये लिखना, in case of initial audit engagement, auditor has to obtain sufficient and appropriate audit evidence. One of the objectives, though, according to SF 110, one of the objective of, देखो ये भी एक आर्ट है लिखने का। आपको मालूम है 510 का ऑब्जेक्टिव में तीन चीजें हैं, अब यहाँ तीनों चीजें आ ही नहीं रही। यहाँ आई एम कंसर्न विद वन थिंग, तो आई विल राइट अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ SF 110। समझ रहे हो लिखने की स्टाइल? अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ SF 510, मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं इनमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। इतना से लिख दिया। अभी वो तीनों लिखता तो मेरा टाइम बर्बाद हो जाता, फिर मैं आके बाहर कंप्लेंट करता गया थोड़ा पेपर है और कैसे लिख गया। अरे तो पागल तो तुम हो, वो लिख रहा भाई ज्यादा। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लिख के कोरिलेट कर देना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके, तो अब क्लोजिंग इन्वेंट्री तुम आप ले ही रहे हो, आप कोरिलेट करेंगे, है ना? ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में ऑडिट एविडेंस कैसे लूं, इसके लिए उसको सजेस्टिव ऑडिट प्रोसीजर बताओ, दैट ओपनिंग इन्वेंट्री की क्वांटिटी रिकंसाइल कर लो। कैसे? क्लोजिंग तो आप वेरीफाई कर ही रहे हो, है ना? क्लोजिंग में से इस साल की परचेस हटाओ और इस साल की सेल्स जोड़ दो, तो आप कहां पहुंच जाओगे ओपनिंग पे? सेल्स या कंजम्पशन। इतनी कॉमन सेंस तो अपने में है कि क्लोजिंग में से परचेस माइनस करेंगे और कंजम्पशन जोड़ देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? ओपनिंग। उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने? सही तो करते हैं, ओपनिंग प्लस परचेसेस लेस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग। अभी क्लोजिंग से कहां पहुंचना है? ओपनिंग पे। क्लोजिंग में से हटा दो सारी चीजें, एंड देन यू गो। हेलो, रिकंसाइल कर लो ना उल्टा। ओपनिंग प्लस परचेसेस लेस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग, यही है। अभी क्लोजिंग बैलेंस दिया है, इसमें से सेल्स हटाओ, परचेसेस जोड़ो, तो क्या हम ओपनिंग पे पहुंच जाएंगे? क्यों नहीं पहुंचेंगे? 100 की परचेस थी, 100 की ओपनिंग था, 200 की परचेस थी और 200 की ही सेल थी, तो हम वापस कितने में पहुंच गए थे? 100 पे। अब क्या करूं? 100 में 200 जोड़ दूं, 300, माइनस 200 कर दूं, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? 100 पे। ये तो मैं बोल रहा हूँ, उल्टा चलते टाइम तो आपको उल्टे साइन लगाना पड़ेंगे, नहीं तो कुछ लोग यहाँ परेशान हो जाते। हो 200 ले लिया ना सर आपने, इसलिए गड़बड़ हो गई। चल 200 मत ले। 100 थे, बहुत बहुत परेशानी भैया। 100 थे, 200 जोड़े और 300 बेच दिए, तो यहाँ जीरो हो गए। चल अब कर ले, जीरो प्लस 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100। नहीं नहीं नहीं, जीरो मत कर। अरे मेरे बाबू,
चले ऐसा कर लिए। 100, 200, 150, बचे 150। 150 में से 150 में 150 जोड़, 300 में से 200 हटा, तो पहुंच गया 100। यही करना पड़ेगा, उल्टे साइन मत लगाना। जो मैंने आपको बोला था ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, इसलिए बोला था उल्टे चल रहे। गॉट इट? तो इसको कहते हैं रिकंसिलेशन क्वांटिटी का। क्वांटिटी के रिकंसिलेशन के बाद वैल्यूएशन परफॉर्म करो। वैल्यूएशन कैसे परफॉर्म करूं? भाई साहब, करंट ईयर की जो सेल हुई है वो किस रेट पे हुई है? अगर कॉस्ट से नीचे हुई है तो यहाँ एनआरवी पे लाओ साले को, और अगर कॉस्ट से ऊपर हुई है तो कॉस्ट पे ही रहने दो उसको। अप्रैल मई जून की सेल देख लेना भाई। अप्रैल मई जून की सेल अगर कम वैल्यू पे हुई है कॉस्ट से, तो 31 मार्च को ही जाके एडजस्ट करवा उसको। ओपनिंग बैलेंस ही गड़बड़ते हैं। और अगर ज्यादा पे हुई है तो जो कॉस्टली हुई है वो ले लो, वैल्यूएशन भी निकल जाएगा। और थोड़ा सा कट ऑफ भी देख लेना। मतलब फर्स्ट 30 डेज यानी अप्रैल की जो सेल्स, वो देखना जरूरी है। अप्रैल की सेल्स देखना जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी इन गुड्स तो अप्रैल में ट्रांसफर हुई और उधर इन्वेंटरी दिखाई नहीं, उन्होंने इन्वेंट 31 मार्च को सेल बता दी। ऐसा तो नहीं है चीजों को 31 मार्च को सेल बता दी जबकि वो सब बिकी अप्रैल में। इतनी अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर तो अपन लगा सकते हैं बॉस। ये तो अपने को देना पड़ेगी चीज। खाली रटी रटाई दो चार चीजें लिख देने से तो काम नहीं चल पाएगा दोस्त। अच्छा, 16वां क्वेश्चन। In initial audit engagement, the auditor will have to satisfy about the sufficiency and appropriateness of opening balance to ensure that they are free from material misstatement which may materially affect the current financial statement. Lay down the audit procedure you will follow in case when financial statements are audited for the preceding period by another auditor and when financial statements are audited for the first time. If after performing procedure you are not satisfied about the correctness of the opening balance, what approach will? भाई साहब इसमें तो मेरा जो आप मैंने पूरा चार्ट दिया वो पूरा चार्ट ही बना देना है। इट इज ये तो पूरा ही ऐसे है। क्या बोलो इसमें, पूरा ही चार्ट बनाने को बोल दिया उसने। सिंपल। X has been appointed you as an auditor of ABC Limited. X want to satisfy about the sufficient opening balances. Ensure that they are free from material. Lay down the audit procedure. X follow initial audit engagement. Also approach followed regarding mention of the audit report if X is not satisfied. पूरा चार्ट देना है सर। 1 रुपए की भी कोई गड़बड़ नहीं। इसमें तो कोई दम ही नहीं है कि ये तो कोई है ही नहीं। अगला वाला। In an initial audit engagement, auditor will have to satisfy about the opening balances. They are free from statement which may materially affect the finance. Lay down the audit procedure which you have. फिर वो का क्वेश्चन सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन। CA Jack recently qualified practicing chartered accountant got his first audit assignment in Futura Private Limited for 22-23. He obtained all the relevant appropriate evidence for the item related to statement of P&L. However, while auditing the balance sheet, CA Jack left out obtaining appropriate audit evidence, say confirmation from outstanding account receivable amounting to rupees 100 lakhs continued as from the last year. On affirmation of the management that there is no receipt and further credits during the year, CAJEC therefore excluded from the audit program the audit of accounts receivable on understanding that it pertains to the preceding year, which was already audited by the predecessor auditor. Wow, wow.
बताइए क्या करें इसमें। व्हाट टू डू। देखो यार, पूरा इंडिया लिख के आएगा, एक्सक्लूड नहीं कर सकता। चलो आधा नंबर दे दिया। चल आधा नंबर दे दिया। सर मैंने ना ऐसे का नाम भी लिखा है। 510। चल आधा नंबर दे दिया। सर मैंने ऑब्जेक्टिव भी लिख दिया। देखो आधा नंबर इसका दे दिया मैंने, आधा नंबर इसका दे दिया। चल तूने ऑब्जेक्टिव भी लिख दिया, एक नंबर भी दे दिया। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन तेरे को मिले 2। चल लेके आ 2 और, 5 में से 5 तो मेरे को भी नहीं आएंगे। चल अगले 2 की व्यवस्था कर भाई। अगले 2 की व्यवस्था की जाए। क्या लिखा जाएगा कि अगले 2 नंबर आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ गड़बड़। तुमको याद हो कि तुमने ओपनिंग बैलेंसेस में पढ़ा कि अगर प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया है और अगर एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, तो मैं उसके ऊपर रिलाय कर सकता हूं, अनलेस मुझे कोई कॉन्ट्रैरी एविडेंस ना मिले। क्या ये लाइन तुमको याद आई? सॉरी आपने बताई तो याद आई है। मैंने बताई तो याद आई मतलब? ये तो मेन लाइन थी। प्रेडिसेसर ऑडिटर के काम पर भरोसा करना ही है, जब तक कि कोई कॉन्ट्राडिक्ट एविडेंस आपको मिले ना कि प्रीवियस ईयर का ऑडिट ढंग से नहीं हुआ है। रिलाय ऑन हिम। ये तो बोला था। देखिए, यहाँ आप एक चीज इंश्योर करना था। ये कौन लेगा कि हाँ कोई ट्रांजेक्शन इस पार्टी से नहीं हुआ है, एंड अ पार्टी इज अ गुड डेट, इट इज नॉट बैड डेट। एंड थर्ड, obtain external confirmation फ्रॉम द पार्टी कि भैया इससे पैसे लेने हैं। और तुमने तो इन 3 चीजों को करने की बजाय उसको एक्सक्लूड ही कर दिया। अब ये एक्सक्लूजन जो किए तो गलत किया। अब हमने क्या लिखा? पहले ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता।
और ये कौन लिखेगा भाई इसका? फिर जाके खड़े हो जाना दिल्ली में, जंतर मंतर पे, सामने बैठ जाना इंस्टीट्यूट के, और चिल्लाना वहां जाके कि हमको नंबर नहीं देते हो। कहाँ से नंबर दें तुमको? रटी रटाई तीन चीजें लिख दी तुमने, नीचे की चीजें नहीं लिख रहे हो तुम। और जब सजेस्टेड आता है, उस सजेस्टेड में नीचे की तीन चीजें होती है, तो तुम क्या बोलते हो? हमने ये लिखा तो था, यही तो दिया, सेम टू सेम। नीचे की वो फालतू बातें, वो अलग है। अरे फालतू नहीं है पागल आदमी, वो इम्पोर्टेंट है। काय की फालतू है ये नीचे की फालतू हो गई, वो तू जो रट के आया वो इम्पोर्टेंट है। हमारे घोड़े जब काम कर रहे हैं तो इसके से होगा बताओ? वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको खुद नहीं मालूम है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, दे ऑल लीड टू यू, यू ऑल टू आईसीआई। चलो प्रोटेस्ट करते हैं। अरे प्रोटेस्ट क्या करते हैं, पहले देख तो लो अपनी कैसी हालत है। आओ, माना मैंने, गलती होती है, इतनी भी नहीं होती मतलब कि बिल्कुल ही गलत हो। नाउ आगे, माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि अंधेरगर्दी चल रही है, वहां तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, गलतियां हर जगह होती। अपनी किस्मत है, कभी गलती में फंस गए तो। चलिए, while conducting audit of PC Limited, CAT decided to use sampling techniques to test the receivables at the planning stage. Wow. He directed his team member to divide the whole population of trade receivable balances to be tested in few separate groups called strata. He directed to treat each stratum as if it was a separate population and divided the trade receivable balances of P Limited for financial year 23-24 into the groups on the basis of personal judgment as follows. Balance exceeds rupees 50, 40, 30, 120, 10, 10, 28, 40, 50, 40, 30, 20, 10. From the above mentioned group, CAT directed to pick up different percentage of items for examination from each of the group. One of the team member, Mr. Neil, want to use some other technique of sampling for the above purpose as the concept of stratification is not clear to him. You are required to explain the concept of stratification and its use to Mr. Neil. मूल मुद्दा तो नीचे लिखा हुआ है, तो इतनी बकर बकर करने की क्या जरूरत? ऊपर ऑडिट सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफिकेशन, क्या होता है इसमें? देखिए सर, बहुत सिंपल सी बात है। जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है, जब पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी होती है, तब हम पॉपुलेशन की वेरिएबिलिटी को कम करने के लिए, पॉपुलेशन की वेरिएबिलिटी को कम करने के लिए उस पॉपुलेशन को सिमिलर मॉनेटरी आइटम्स, मतलब रेंज ऑफ मॉनेटरी आइटम्स में डिवाइड कर देते हैं। डिस्क्रीट पॉपुलेशन विथ एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक, ये वर्ड नहीं आया। तो नंबर नहीं मिलेंगे।
discrete population with identified characteristics. क्यों करते हो? वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम को रिड्यूस करने के लिए, वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए। और वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाती है तो क्या कम हो जाती है? सैम्पलिंग रिस्क कम हो जाती है। इट रिड्यूसेस सैम्पलिंग रिस्क ऑल्सो। इज दैट क्लियर? ये तीन वर्ड नहीं आएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। चाहे फिर आप बोल दो स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स क्या होता है और स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, ईच ग्रुप विल बी डिवाइडेड इनटू सब पॉपुलेशन एंड दैट सब पॉपुलेशन कॉल्ड स्ट्रेटा एंड ऑल दैट, मेरे को वो सब तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन मुझे क्या चाहिए? बेसिक कोर फंडामेंटल। स्ट्रेटिफिकेशन वहां लगता है जहां पर पॉपुलेशन हिट्रोजीनियस होती है। जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है तब हम उस पॉपुलेशन की वेरिएबिलिटी को कम करने के लिए पॉपुलेशन को सब डिवाइड करते हैं इन अ डिस्क्रीट पॉपुलेशन विथ आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिर हर आइडेंटिफाइड स्ट्रेटा में से सैंपल चुनते हैं और उन सैंपल से हम प्रोजेक्शन लेते हैं। समझ में आया? हर स्ट्रेटम में से जब आप सैंपल लोगे तो वो सैंपल लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को जब प्रोजेक्ट करोगे तो उसी स्ट्रेटा पे प्रोजेक्ट होगा। तो जिस स्ट्रेटम में से सैंपल निकाल के रिजल्ट दिया वो उस स्ट्रेटा को बताएगा। अब हर स्ट्रेटा का रिजल्ट आपके पास रहेगा। उस स्ट्रेटा के सारे रिजल्ट्स को जब कंबाइंड करोगे तो पॉपुलेशन का आरओएमएस आएगा, एंटायर पॉपुलेशन। इसलिए हर स्ट्रेटम को सेपरेट पॉपुलेशन मानना जरूरी होता है। समझ में आ गया? रिवाइज हो गया आपका स्ट्रेटिफिकेशन। लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन के साथ ये लाइन देना बहुत जरूरी है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। चल, CA Ritesh Deshpande has drawn some samples during the course of audit of a manufacturing company for testing controls as well as for test of details. On the basis of sample selected, he reaches to erroneous conclusion that access control on application are less effective. Further, on the basis of sample selected, he concludes erroneously that work in progress of inventory amounting to rupees 5 crore in financial statement are materially misstated. Obtaining above risk involved, discuss how to going to affect his audit of the company. सबसे पहले SA 530 का नाम, उसके बाद सैम्पलिंग रिस्क की डेफिनेशन, risk that sample may not represent the population. सैम्पलिंग रिस्क जब किसी सैंपल पर, अब ये ध्यान से देखना है ना बेटा, ये पूरा लिख के आना पड़ेगा अपने को, ये पूरा लिख के आना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है? वी हैव टू राइट इट इन फुल। सैम्पलिंग रिस्क को पूरा देखना पड़ेगा। कैसे पूरा देखना पड़ेगा? देखो, सैम्पलिंग रिस्क में आपको लिखना पड़ेगा पहले तो डेफिनेशन, फिर एक सैंपल के ऊपर हम लगाते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल,
और लगाते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल। अगर सैंपलिंग रिस्क हाई होती है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल से आती है ROOR और ROIR, और इधर आती है ROOR और ROUR, और इधर आती है ROIA और ROIR। से कुछ पढ़ाया पहले? जवाब जवाब दो, जवाब दो। सैंपल के ऊपर कौन सी प्रोसीजर लगाओगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और कौन सी लगाओगे? टेस्ट ऑफ डिटेल्स, है ना? टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाओगे और मान लो सैंपल ने आपको रिजल्ट गलत दे दिया, तो क्या होगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाने के बाद मेरे को सैंपल ने गलत बता दिया, मैंने कर दिया रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, या मैंने कर दिया रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस। रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस मतलब बेकार इंटरनल कंट्रोल को अच्छा मान लिया, अंडर रिलायंस मतलब अच्छे इंटरनल कंट्रोल को बेकार मान लिया। इसी तरीके से रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, अरे ये तो मैं इंटरमीडिएट में पढ़ाता हूँ यार, सेजल तू तो बता। रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन। अच्छे भले इंटरनल कंट्रोल को रिजेक्ट कर दिया, या बेकार इंटरनल, सॉरी, अच्छे भले अकाउंटिंग सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया और बेकार अकाउंटिंग सिस्टम को एक्सेप्ट कर दिया। अब क्या होता है देखो, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, मतलब बेकार इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा कर लिया और बेकार अकाउंटिंग सिस्टम पे भी भरोसा कर लिया, तो आप यहाँ पर सैंपलिंग रिस्क जो है आपकी सातवें आसमान को पार कर जाएगी और आप एरोनियस स्टेटमेंट दे दोगे। ऊपर से आपकी ऑडिट की इफिशियंसी तो बढ़ जाएगी और इफेक्टिवनेस की तो वाट लग जाएगी। लेकिन अगर आपने रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस कर लिया और रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन कर लिया, यानी इंटरनल कंट्रोल अच्छा भला था, आपने सही नहीं माना, अकाउंटिंग सिस्टम अच्छा था, आपने सही नहीं माना, तो आप अपनी ऑडिट प्रोसीजर नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड इतनी बढ़ा दोगे कि उसकी इफेक्टिवनेस तो बढ़ जाएगी लेकिन इफिशियंसी बहुत कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क ओवर ऑडिट। रिस्क ऑफ सैम्पलिंग रिस्क ओवर ऑडिट इसको कहते हैं। समझ में आ गया एवरीवन? अच्छे इंटरनल कंट्रोल को अगर आप खराब मान दोगे, अच्छे अकाउंटिंग सिस्टम को आप अगर खराब मान दोगे, तो आप आरओएमए में ज्यादा बना लो। आरओएमए में प्रोसीजर प्रोसीजर बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, इफिशियंसी कम होगी, भले इफेक्टिवनेस बढ़ जाए, अननेसेसरीली ऑडिट आपका डिले हो जाए। और उल्टा मान ले तो बेकार इंटरनल कंट्रोल को अच्छा मान लिया, बेकार अकाउंटिंग सिस्टम को अच्छा मान लिया, जबरन में उन पर रिलाय कर लिया, जबरन में अपनी ऑडिट प्रोसीजर नेचर एडमिनिस्ट्रेशन को कम कर ली, ऑडिट की इफिशियंसी तो बढ़ा ली, इफेक्टिवनेस की तो वाट लगती है। ये है इफेक्ट किसका? इफेक्ट। ये चारों इफेक्ट बताना थे। ठीक है, और ये चारों इफेक्ट पहले अपने मॉड्यूल में ढूंढना, उसके बाद इस आंसर को सही लिखना, क्योंकि मॉड्यूल में तो इसका आंसर गलत है।
मॉड्यूल में जाके ये चारों ढूंढना। हम्म। वही लिख। चल। Chintamani Limited appoint Chintan and Money auditor for financial year this. Chintan and Money seems to have different opinion about audit approach to be adopted for audit of Chintamani Limited. Money is of opinion 100% checking करो. 100% checking not required and can rely on audit sampling techniques in order to provide them a reasonable basis which they can draw reasonable conclusion. Chintan is concerned that whether the use of audit sampling has provided a reasonable basis for conclusion about the population that had been tested. You are required to guide Chintan about his role if audit sampling has not provided a reasonable basis for conclusion about the population that had been tested in accordance with SA 530. ये क्या पूछ लिया? मैंने सैम्पलिंग लगाई। सैम्पलिंग लगाने के बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट को प्रोजेक्ट किया। रिजल्ट को प्रोजेक्ट करने के बाद मेरे पास ढेर सारा प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट आ गया और मुझे लगा कि यार मेरी सैम्पलिंग रिस्क बहुत हाई है और हो सकता है कि ये जो सैम्पलिंग मैंने लगाई है इसका रिजल्ट तो आया है हाई, वाकई में मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है मेरे को क्या मालूम। तो एक काम करते हैं, क्या करें, आप मैनेजमेंट से जाके बोलो कि सर मेरे को इतनी भयंकर मिस स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, क्या आप इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? मुझे लग रहा है कि इतने पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट है, क्या आप इस मैटर को एक बार देख सकते हो कि ये मेरी गलती है या ठीक है। और दूसरा, मैं अपनी ऑडिट प्रोसीजर की नेचर टाइम एंड एक्सटेंट तो चेंज कर ही रहा हूँ, मैं वापस से सैंपलिंग लगा रहा हूँ, सैंपल का साइज बढ़ा रहा हूँ, अल्टरनेटिव प्रोसेस लगा रहा हूँ, वो तो मैं करूंगा ही। पर एक बार आप देख, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, रैंडम सिलेक्शन क्या होता है, सिस्टमैटिक सिलेक्शन क्या होता है, बताओ उसको। ठीक है। Guide the assistant with principal method of collecting the sample. Random selection, systematic selection, haphazard selection, block selection. ठीक है, that you can do all. ये क्वेश्चन तो अपन ने कर ही लिया अभी, तो रिपीट हो गया ना। इसको अपन कल करेंगे, ज्यादा ओवरबर्डन नहीं। विल डू इट टुमारो। कल ऐसे 550, 560, 570, 580 एक साथ निपटाएंगे सारे। आज आप जरा इनको एक बार करके रख लो सारे क्वेश्चंस को। सो finish all these questions today. Okay. Tomorrow we'll finish the next set. अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चलो बाय।